students. Today we are going to discuss text-based questions of lesson number 10, Love Across the Salt Desert. From question number 1 to question number 10, we have discussed all the questions at length. Now it is turn of question number 11. Question number 11 is, what was Zaman's reaction to Najib's absence from the village? Why? ज़मान ने जब नजब को गाँव में नहीं पाया तो इसका रिएक्शन क्या था, रद्द अमल क्या था और ऐसा क्यों इसने किया? As when we learned the lesson, when we studied the lesson, one thing was obvious, that all the developments which were related directly or indirectly to border, across the border from India to Pakistan and from Pakistan to India, Zaman were directly or indirectly involved all in all the times. So when something happens in absence of Zaman or without informing Zaman, it is natural it would touch his sentiments, and it happened too. When this incident happened, when Najib left the village for Pakistan without informing Zaman, so his reaction was one of great anger. He told Najib's father that Najib was not so innocent as his family members or villagers or the world or the people believe. He's guilty. He's guilty before law. He's guilty before Zaman. He's guilty before the people of the village. He called the boy, or he called the Najib, a pig and a son of pig. His angriness was as a result that the boy had gone to Pakistan without taking permission to him. He had underestimated him outrightly. नजब ने बिल्कुल उसे नज़रअंदाज किया था. इसका मानना था कि जब उसे जाना ही था, उसे ज़मान से परमिशन लेनी थी, ज़मान का आशीर्वाद लेना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. तो इसने ज़मान के एहसासात को टच कर दिया, इसने ज़मान के जज्बात को टच कर दिया. उसने अपने लिए एक बेइज्जती समझ ली. तो उसने ज़मान को, इस नजब को सौर या सौर की औलाद के नाम से पुकारा. Now, as for the Zaman, Najib has run the gauntlet with the law. He had challenged the law. He had not even said a word to Zaman, or he had not sought any permission from Zaman, or he had not given him a tip as a 100
रुपीज़ नोट और समथिंग एल्स। ना ही उसने उसे सलाम किया, ना कलाम किया, ना कोई टिप बख्शिश वगैरह। 100 रुपये का नोट भी हो सकता था, वो भी उसने नहीं दिया था। तो यही वजह थी कि ज़मान का रिएक्शन जो था बड़ा हारिश था नजफ़ के बारे में। ये इस वजह से था कि ज़मान के बगैर बॉर्डर के आर पार कोई बात चल नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, The absence of a man and a camel from the village was significant because we have to say whether the statements are true or false. Number A, it meant that someone had gone across the border. It meant someone had come into the country. It meant that camel would be confiscated by the officials. क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब है कि अगर कोई इस गांव में, खौड़ा के विलेज में, अगर कोई बंदा अपने ऊंट के साथ गायब था तो इसके कुछ मतलब लिए जाते थे जो हमें नीचे दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा मतलब ठीक है, कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स हमें लगाना है। पहला है नंबर ए, इट मेंट दैट समवन हैड गॉन अक्रॉस द बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि कोई बॉर्डर के आर पार चला गया है। इट मेंट दैट समवन हैड गॉन इनटू द कंट्री। इसका मतलब है कि कोई मुल्क में दाखिल हुआ है, कम इनटू द कंट्री, कोई मुल्क में दाखिल हुआ है। नंबर सी है, इट मेंट दैट कैमल वुड बी कॉन्फिस्केटेड बाय द ऑफिशियल्स। इसका मतलब है कि जो कैमल है इसको पकड़ लिया है, ऑफिशियल्स ने बंद कर दिया है, हड़प कर लिया है। जो हमने लेसन पढ़ी उसमें साफ जाहिर है कि जब कोई बंदा अपने कैमल के साथ गाँव से बाहर है, गाँव से गायब है, तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि ये जो कैमल और इंसान के गायब होने का मतलब ये है कि वो बॉर्डर के पार चला गया है। It meant that someone had gone across the border. It's true. इसी तरह से बी है कि it meant that someone had come into the country. कोई वहाँ से मुल्क में दाखिल हुआ है, ये फालिस है। It meant that camel would be confiscated by the officials. ये भी फालिस है, ये भी ठीक इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Fatima says, just my luck to run into the mutes. Who are the mutes she refers to? Why does she make this statement? Just my luck to run into mutes. ये मेरी किस्मत है कि गोंगू से मेरा साबिका पड़ा है। ये म्यूट्स कौन लोग थे? गोंगे कौन लोग थे? उसने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे दिया? इसका यही मतलब है कि काले शाह ने अपनी बेटी पर प्रेशर बनाया था कि वो शादी करे एक स्टैमरर से, तितलाने वाले एक बंदे से वो शादी करे। मगर वो नजब के इस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे शादी करना चाहती थी। मगर नजब भी कुछ बोलता नहीं था। वो अपनी मुस्कुराहट से नजब को उकसाने की कोशिश कर रही थी, मगर नजब कुछ शर्मिला सा था, वो बात यहाँ से नहीं कर रहा था।
तो बात फातिमा दो इंसानों के बीच में अब कुछ खेल तमाशा बन चुकी थी। एक वो कि जिसके साथ ज़बरदस्ती उसकी शादी कराना चाहते थे, वो स्टैमरर था। दूसरी वो कि जो जिसे वो खुद करना चाहती थी, वो बोलता ही नहीं था। अब ये क्वेश्चन बनता है कि म्यूट्स कौन लोग थे। म्यूट्स एक महफूज अली था जो स्टैमरर था, और दूसरा नजब था, वो शाय और डिफिडेंट था। नाउ व्हाट वी राइट, Kalisha put pressure on his daughter to marry Mahfuz Ali, who was a stammerer. She does not want to marry Mahfuz Ali. She fell in love with Najib, who had come from India. But due to her ill luck, Najib was very shy. He wouldn't respond Fatima as per her wishes. So Fatima faced with two men, one with a stammering and the other quiet and taciturn. So the mutes were Mahfuz Ali and the Najib. One was the stammerer and other was shy. That's what the question demands from us. Question 14. Najib knew that Fatima loved him because, take the right answer, she made special dishes for him to eat. She told him that she loved him. She made suggestive gestures. नजब ये जान चुका था कि फातिमा उसे प्यार करती है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। तो कैसे जान गया वो? उसने क्या देखा? शी मेड स्पेशल डिशेज फॉर हिम टू ईट। क्या उसने इस वजह से जान लिया कि वो उसके लिए अच्छे से खाना डिशेस बनाती थी ताकि वो खाए? उसे पता चला कि ये मेरी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, तब ये बनाती है। नंबर बी है, शी टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम। फातिमा ने डायरेक्टली उसे बताया कि वो उसे मोहब्बत करती है। शी मेड सजेस्टिव जेस्चर्स, या उसने अपने आप में कुछ जेस्चर्स, कुछ अलामात, कुछ इशारे देना शुरू कर दिए थे, जिसे पता चला नजब को कि वो उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, शी मेड सजेस्टिव जेस्चर्स, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि उसी वजह से उसे पता चला था कि ये उसे मोहब्बत करती है फातिमा नजब से। थैंक यू वेरी मच दिस फॉर टुडे।